Visual acuity, one of the functional aspects of sense of vision. Others are like the sense of light, sense of brightness, perception of depth, color vision, perception of motion. Likewise, we have visual acuity, that is clarity of vision. And this visual acuity we have for distant vision and for near vision, both. So during your practicals, you have to determine it for distant and near. So in this video, we are going to see how it is going to be determined for distant vision. What is the chart we are going to use? What is the basis of it? What are the Viva questions that can be asked along with this practical? The whole things are going to be discussed in this video. So come on, let's watch it. So here is your question which can be asked in your examination, that is determine the visual acuity for distant vision in the given subject. तो visual acuity निकालना है. Visual acuity का meaning क्या है? The ability of eyes to see two different points as two different entities. मतलब कोई दो points है या दो भी object है या दो lines है, उनको दो सेपरेट चीजों के जैसे देखने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड विजुअल एक्विटी. अगर वो एबिलिटी कम हो गई तो फिर आप पेशेंट का कंप्लेंट क्या रहेगा कि मुझे क्लियर नहीं दिखता है. क्लियर नहीं दिखता दैट मीन्स उसकी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखने की जो एबिलिटी है वो चली गई. So the ability of eyes to see two different points as two different entities, that is called visual acuity. Visual acuity का जो measurement है that depends upon the visual angle. Visual angle. What is that angle? This angle is formed by two different point objects on nodal point of your eye. तो नोडल पॉइंट कौन सा होता है हमारी आई का? ये हमारा कॉन्वेक्स हमारा लेंस है. इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज नोडल पॉइंट. एंड ये हमारे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब ये जो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, these objects are making an angle of 1 minute. तो 1 minute का जो visual angle है, that is the minimum angle which is drawn by two different points. Then these two different points can be perceived as two different entities. That means 1 minute को आप क्या बोलोगे? This is called minimum separable. That is the word also used. This term is used as synonym of visual acuity. Minimum separable. So minimum separable is what? The distance between the two point object is such that they are making the angle of 1 minute at nodal point of your eye. Then they will be perceived as two different entities. Okay? अब इसके पीछे का बेसिस क्या है? बेसिक लेंस के पीछे जाएंगे तो इमेज आपकी फॉर्म होगी कहाँ पे? रेटिना पे. तो ये आपका हो गया रेटिना. अब इस रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी तो ये आपका लाइट रे आ रही है पॉइंट ए से, और ये वाली आपकी जो है वो रे आ रही है पॉइंट बी से. सो ये इमेज बन गई पॉइंट बी की. दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए. अब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी लेस देन 4.5 माइक्रोमीटर. 4 और 4.5 माइक्रोमीटर. दैट इज अगेन मिनिमम सेपरेबल. तो ये जो 1 मिनट का एंगल है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद द डिस्टेंस ऑफ 4.5 माइक्रोन एट द लेवल ऑफ रेटिना. अब 4.5 माइक्रोमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इस डिस्टेंस पे 4.5 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पे लगभग आपके जो कोन्स आते हैं वो 3 कोन्स कवर करते हैं वो डिस्टेंस. एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट हियर कोन 1 and next image is formed as cone 3. cone 2 पे नहीं फॉर्म हुई है, तो ये आपका हो गया सेंटर का पॉइंट जो डिफरेंशिएट करेगा इन दो इमेजेस को, राइट? तो इस तरीके से ये 4.5 माइक्रोन का सिग्निफिकेंस आता है. अगर 4.5 माइक्रोमीटर की दूरी से आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स नोडल एंगल पे उसका विजुअल एंगल बनेगा 1 मिनट का. दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स कैन बी परसीव्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज. दिस इज द बेसिस ऑफ विजुअल एक्विटी. ठीक है. अब ये जो 1 मिनट का जो एंगल है ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इससे आगे हमारा स्नेलन चार्ट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. दिस इज योर
Snellen's chart, which is used to determine the visual acuity for distant vision. इस चार्ट के साथ आप सभी फेमिलियर होंगे. मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस टेस्ट कि आपको वो एक एक आंख बंद करा के और इसको चार्ट को पढ़ने के लिए बोलते हैं, और जिस लाइन तक आप पढ़ते हो वहां तक आपका विजुअल एक्टिविटी रहता है. सो इस चार्ट का बेसिस क्या है कि ये इतनी सारी लाइंस बनाई हुई हैं और उसमें किस प्रपोर्शन में इनका साइज छोटा होता है. तो उसका बेसिस वही है विजुअल एंगल 1 मिनट. कैसे? If on the left side of your slide you can see here I have drawn this letter E. इस लेटर E के जो पॉइंट्स हैं सारे 6 पॉइंट्स हैं, ये वाले दो, ये 2 पॉइंट्स एंड ये 2 पॉइंट्स. अब ये 6 के 6 पॉइंट्स, अगर 6 के 6 पॉइंट्स या फिर लाइंस अगर 6 डिफरेंट लाइंस के जैसे आप देख पा रहे हो तो आप इसको E के जैसे आप पढ़ लोगे. ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए दो सेपरेट पॉइंट्स को या लाइंस को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका जो एंगल है नोडल पॉइंट पे जो विजुअल एंगल बन रहा है इट शुड बी 1 मिनट एक नॉर्मल इंसान के लिए. तो ये 1 मिनट का एंगल बनना चाहिए. अब ये दोनों पॉइंट्स 1 मिनट का एंगल बनाएंगे कब? जब ये मैक्स टू मैक्स किस डिस्टेंस पे होगा? 60 मीटर्स की डिस्टेंस पे. 60 मीटर्स की डिस्टेंस से आगे अगर ये लेटर होगा तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, फिर आप इसको ई के जैसे नहीं पढ़ पाओगे. बट नॉर्मल इंडिविजुअल कैन रीड इट एज लेटर ई फ्रॉम 60 मीटर ऑफ द डिस्टेंस. उसके बाद अब आप आते हैं कि आगे का अभी. और दूसरी चीज, ये जो 2 पॉइंट्स, एक और चीज इस स्नेलन चार्ट में रहती है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं आखिर के 2 पॉइंट्स, इनके बीच का जो एंगल रहता है वो एंगल होता है लगभग दिस एंगल इज एंगल ऑफ 5 मिनट्स. ठीक है, तो ये पूरा लेटर का एंगल होता है 5 मिनट का और एनी 2 पॉइंट्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 1 मिनट का. अब इस 5 मिनट के एंगल के बीच में जितने भी लेटर्स आएंगे तो वो आप उसको रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे पढ़ पाओगे. जैसे अगर मैं इसका नेक्स्ट लेवल का ई ड्रॉ करूंगी, सो दिस विल कम एज लाइक दिस, राइट. और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स अभी भी 1 मिनट का एंगल यहाँ पे बनाएंगे और ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो 5 मिनट का एंगल बनाएगा. इसी पाथ पे अगर मैं एक और लेटर ड्रॉ करूंगी, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. ओके, लाइकवाइज. तो ये आपका साइज जो है ये लेटर का छोटा होता जा रहा है, जैसे कि स्नेलन चार्ट में लेटर का साइजेस छोटे होते जा रहे हैं. ठीक है, अब ये लेटर का साइज किस प्रोपोर्शन में हुआ है? अगर ये लेटर को आप इस लेटर को 36 मीटर की डिस्टेंस पे देखोगे तो ये आपका जो एंगल है वो बनाएगा 1 मिनट. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 24 मीटर. दैट मीन्स ये जो साइज का लेटर है वो 24 मीटर की डिस्टेंस से एंगल बनाएगा 1 मिनट का. ये पूरा लेटर बनाएगा 5 मिनट का एंगल एंड एनी 2 पॉइंट्स एडजेसेंट पॉइंट्स विल मेक द एंगल ऑफ 1 minute. So you can identify this letter as E from 24 meter of the distance. तो ये अब स्नेलन चार्ट को देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट लाइन जो आता है ये आता है, इट इज सपोज टू बी रेड फ्रॉम 60 मीटर ऑफ डिस्टेंस. सेकेंड आ गया 36 वाला लाइन, थर्ड आता है 24. ये नंबर्स आपको स्नेलन चार्ट पे लिखे हुए दिखेंगे. 24, उसके बाद आएगा 18, देन 12, देन 9, आफ्टर दैट 6 और उसके बाद आता है 5. तो अब जब आप स्नेलन चार्ट में रिकॉर्डिंग करेंगे अपना सब्जेक्ट का, आपको विजुअल एक्टिविटी डिटरमिन करना है. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. यू विल आस्क योर सब्जेक्ट टू रीड दिस स्नेलन चार्ट एंड हाउ यू हैव टू चेक इट फॉर बोथ मोनोक्यूलर विजन, मतलब एक एक आंख का विजन आपको देखना पड़ेगा, एंड बाइनोक्यूलर, दोनों का साथ में आपको विजन चेक करना पड़ेगा. तो मोनोक्यूलर विजन चेक करने के लिए आप राइट आई करेंगे व्हेन लेफ्ट आई कवर्ड, फिर आप लेफ्ट आई का विजन चेक करेंगे व्हेन राइट आई इज कवर्ड. एक एक आंख का जब आप विजन चेक कर रहे हैं, इफ योर सब्जेक्ट इज हैविंग स्पेक्स तो आपको विद स्पेक्स भी लेना है रिकॉर्डिंग और विदाउट स्पेक्स भी लेना है. अगर उसको स्पेक्स नहीं है तो ओके, अगर स्पेक्स है तो विद स्पेक्स एंड विदाउट
specs you are going to take the reading. बाइनोक्यूलर के लिए आपको दोनों आईज का एक साथ करना है, both the eyes simultaneously, and again with specs and without specs. How you are going to report your finding? उसके लिए visual acuity, जैसे आपका blood pressure है 120 by 80 millimeter mercury, that is the way of representation. How you are going to present the visual acuity? Visual acuity is presented in the form of a ratio. अब रेशो है तो एक होगा आपका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. अब इसमें न्यूमरेटर क्या रहेगा? न्यूमरेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच द सब्जेक्ट इज रीडिंग द चार्ट विच इज फिक्स्ड, दैट इज 6. आप हमेशा उसको 6 मीटर की डिस्टेंस पे चार्ट पढ़ने के लिए बोलोगे. उसके बाद आता है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आएगी, वो लाइन आएगी जहां तक सब्जेक्ट ने पढ़ा है. इफ दिस इज कमिंग एज, अगर उसने पढ़ा है 12 वाली लाइन तक, दिस इज द लाइन, इसके बाद उसको नहीं क्लियरली दिख रहा है, तो आपका ये विजुअल एक्विटी का वैल्यू आ जाता है 6/12. दैट मीन्स from the 6 meter of distance the subject is reading the chart and he is able to read the line which is read, supposed to be read by a normal individual from 12 meter of the distance. This is the way of interpretation of this visual acuity 6/12. तो अब इस तरह से आपको राइट आई का निकालना है, विद स्पेक्स विदाउट स्पेक्स आपके डिफरेंट रीडिंग्स आ सकते हैं. लेफ्ट आई का निकालना है, बाइनोकुलर विजन निकालना है, विद स्पेक्स विदाउट स्पेक्स. तो हर बार आपका जो विजुअल एक्विटी का फाइंडिंग आएगा दैट इज कमिंग इन अ रेशियो. ओके, सो दिस कैन गो 6/60 है, 6/36 हो सकता है, 6/24 हो सकता है, 18 तक पढ़ा 6/18, 6/12, 9 तक पढ़ा 6/9, पूरा 6 तक पढ़ लिया, the vision will be 6/6 which is the normal vision. okay, 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है और वो लाइन पढ़ पा रहा है जो 6 मीटर से पढ़नी चाहिए, तो नॉर्मल विजन हो गया. कुछ इंडिविजुअल्स में इट में गो टू 6/5 ऑल्सो. ओके, उनकी विजुअल एक्टिविटी और भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है. सो दिस इज द रिपोर्टिंग ऑफ योर फाइंडिंग ऑफ विजुअल एक्टिविटी. Okay, what you are supposed to do if the subject is not able to read this only? अगर ये भी नहीं पढ़ पाया, आपका ये पढ़ा तो आप बोलोगे 6/60. अगर ये भी नहीं पढ़ पा रहा है आपका सब्जेक्ट, then what you are supposed to do? Then you change this numerator. आपको उसको 1 मीटर नियरर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप उसको 5 मीटर से चार्ट पढ़ने को बोलोगे, and in that time your numerator will be shifted from 6 to 5. फिर आपकी रीडिंग आएगी 5 बाय जितनी भी लाइन पड़ी है, लाइक अगर 60 पड़ी है तो 5/60, देन 5/36, व्हाटएवर. अगर वो 5 मीटर से भी नहीं पढ़ पा रहा है, देन 1 मीटर नियरर, यानी कि 4 मीटर से आप उसको पढ़ने के लिए बोलोगे. 4 मीटर से भी नहीं पढ़ पा रहा, 3 मीटर, 2 मीटर्स, देन 1 मीटर. वो भी नहीं है, देन यू विल आस्क हिम टू काउंट द नंबर ऑफ फिंगर्स. काउंट द फिंगर्स. ठीक है, उसके बाद वो भी नहीं हो पा रहा है, देन यू विल डायरेक्टली पुट द टॉर्च into the eyes of the subject and ask him whether he is able to perceive the light. Perceive the light. इस तरह से हम लोगों को आगे जाना पड़ता है. ये आपके होते हैं वाइवा के क्वेश्चंस कि अगर सब्जेक्ट ने 6 मीटर की डिस्टेंस से कुछ भी नहीं पढ़ा, what is the measure you are supposed to apply? तो ये आपके आंसर्स होने चाहिए. सो ये होता है आपका पिन होल टेस्ट. पिन होल टेस्ट में क्या है, इसका बेसिस क्या है, ये आपको कंफर्मेशन के लिए है. कंफर्मेशन की जो आपका विजुअल एक्टिविटी मिला है, इफ यू आर फाइंडिंग वीकर विजुअल एक्टिविटी, लेस विजुअल एक्टिविटी देन नॉर्मल, दैट मीन्स वो किसी भी वजह से हो सकता है. तो वो अगर रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से है, आप उसको बोल दोगे कि इसको मायोपिया है और नियर साइटेडनेस है. तो मायोपिया इज अ रिफ्रैक्टिव एरर. रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए पिन होल टेस्ट किया जाता है. कैसे कंफर्म होगा ये पिन होल टेस्ट से? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसमें पूरा का पूरा ये ब्लैक है, सिर्फ इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से लाइट पास हो सकती है. इज अराउंड 1 मिलीमीटर का होल रहता है इसमें, जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है और इसमें से लाइट पास हो सकती है.
तो व्हेन द पेशेंट सीज थ्रू दिस होल ओनली और उसका विजन इंप्रूव हो जाता है, दैट मीन्स कि वो रिफ्रैक्टिव एरर था। कैसे? अभी अगर मैंने सपोज यहाँ पे मेरा ये लेंस है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये पूरा ब्लैक कवर्ड है, राइट, एंड जो होल है, दिस होल इज अलाउइंग द लाइट रेज टू पास ओनली थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। तो लाइट लेंस के जितने सेंटर के नजदीक रहेगी, जितनी सेंटर लाइन के नजदीक रहेगी आपके जो ऑप्टिकल रेज आ रही है, उसका रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। So if the light rays are coming centrally in the lens, entering centrally in the lens, refraction will be very less. तो रिफ्रैक्शन कम हो गया तो उसके बाद में क्या है, आपका इमेज प्रॉपर्ली इधर फॉर्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अगर किसी पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर था, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन अगर उसको कुछ एरर है, इमेज प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रही है, आपने उसको उस फैक्टर को नलीफाई कर दिया और आपने सिर्फ सेंटर से लाइट गुजारी कि इसमें रिफ्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, हमको देखना है कि ये प्रॉपर्ली जाके फोकस होती है क्या, और अगर फोकस हो जाती है तो पेशेंट का इंप्रूव होता है विजन। सो इफ विजन इंप्रूव्स आफ्टर पिन होल टेस्ट, दैट मीन्स फिर आपका जो है उसका मायोपिया कंफर्म हो जाता है कि इसको रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर फिर भी विजन इंप्रूव नहीं होती है, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट देयर माइट बी द डिफेक्ट्स ऑफ रेटिना, कि यहाँ पे अगर मैक्यूलर इडिमा हो गया है या फोविया का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, फोविया सेंट्रलिस का, या फिर न्यूरोलॉजिकल एरर हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकते हैं। सो दूसरे फिर आपको किसी दूसरे पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, देन रिफ्रैक्शन इज नॉट द पैथोलॉजी, राइट। सो रिफ्रैक्शन के लिए कंफर्म करने के लिए आपका ये पिन होल टेस्ट किया जाता है कि अगर विजन इंप्रूव हो जाता है, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर। ये वाइवा में बहुत बार पूछते हैं अगर आपका विजुअल एक्टिविटी क्वेश्चन आता है तो ये तो हो गया ऑक्लूडेंस विद पिन होल जो रियल में यूज होता है। लैब्स में इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल हम यूज करते हैं विच इज लाइक दिस, और इसमें ये एक 1 to 2 mm का एक होल रहता है एंड यू आस्क योर सब्जेक्ट टू रीड द स्नेलन्स चार्ट थ्रू दिस होल ओनली विद बोथ द आईज सेपरेटली। तो उसमें अगर आपको विजन इम्प्रूव लगता है, then you can say that this subject is having the refractive error. इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? इसके अलावा आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग विजुअल एक्टिविटी। ये वाइवा का क्वेश्चन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विजुअल एक्टिविटी में क्या होगा? सबसे पहले तो इल्यूमिनेशन। अगर आप दिन के टाइम में कर रहे हो, प्रॉपर लाइट के साथ कर रहे हो, तो विजुअल एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हाई इल्यूमिनेशन, हाई विजुअल एक्टिविटी। Then it comes contrast. अगर आपका जो चार्ट का बेस है, बेस और जो उसके ऊपर अक्षर लिखे हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि मोस्टली ये व्हाइट और ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं। कॉन्ट्रास्ट अगर प्रॉपर अच्छा है तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही विजुअल एक्टिविटी ज्यादा होगी। कलरफुल लाइट यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज अफेक्ट द विजुअल एक्टिविटी। उसके बाद आता है आपका रेटाइनल फैक्टर्स। रेटाइनल फैक्टर्स में आ गया कि रेटाइना में कहाँ पे फोकस हो रही है इमेज। अगर रेटाइना में फोविया के पास, फोविया सेंट्रलिस पर इमेज फॉर्म हो रही है तो उसका विजुअल एक्टिविटी मैक्सिमम रहता है। एंड जैसे जैसे यू मूव टू पेरिफेरल पोर्शन ऑफ रेटाइना तो आपका विजुअल एक्टिविटी कम होता है, क्योंकि सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटाइना में क्या है, सिर्फ एक कोन making the synapse with one bipolar cell, making the synapse with one ganglionic cell। तो ये जो 1 to 1 का जो रेशो है वो इमेज की शार्पनेस देता है, और जितनी ज्यादा शार्प इमेज बनेगी उतना ही ज्यादा विजुअल एक्टिविटी रहेगा। Okay, so these are the factors affecting visual acuity. So hopefully all the queries resolved. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है, पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करती हूँ। और वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आर यू फाइंडिंग इट हेल्पफुल, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताओ। दैट विल बी एनकरेजिंग फॉर मी। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्रेस द लाइक बटन,
share it among your friends, and do not forget to subscribe my channel. Bye bye.